Hello friends, so welcome back. So we are starting off with a new topic today. We are starting with balance of payment and exchange rate. Again, this is one of the most important topics that we see up till now. If you look at past 10-year papers, you will find that every year UPSC has framed somewhere close to 1 to 2 questions in prelims from this topic. At times they have asked us regarding the static part, where they have asked us the components of these accounts. So directly we have been asked questions from static also. Then we have also been asked questions from the dynamic part, where they have asked questions related to trends, right? And thirdly, we have also seen questions being asked from exchange rate particularly. ठीक है? So इस topic में आपको focus करना है, right? You have to focus on different aspects. Plus, this topic will also require some kind of updation from you, especially when economic survey comes. So in the economic survey, they present different trends, figures, what has been the trend for current account, capital account, whether it has been in deficit or in surplus, right? Which component has been exported a lot, which component has been imported a lot. So top 5 exports, top 5 imports, right? This kind of, basic information is required to be updated every now and then. Okay. Now, talking specifically about the topic, balance of payment and exchange rate. So both these topics, they are open economy concepts. Both of them, they are considered to be open economy topics or open economy concepts. Now when I say open economy concepts, what I mean is, had it been 1970s or 1980s, as far as Indian economy is concerned, we were not trading much, right? And that is why exchange rate did not have much significance. And thereby we wouldn't be able to write down balance of payment account of India with the rest of the world, है ना? So अगर हम 1970s, 80s, 60s में जाएं तो वहाँ पर इस दो टॉपिक का कोई रेलेवेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन 1991 में we went for LPG reforms, liberalization, privatization and globalization. And one of the major impacts under globalization, one of the major steps that were taken under globalization was to open the economy, to allow exporters to export and also allow importers to import goods from outside. And that is why you see today that India is exporting also and India is importing goods today, right? And thereby we find that these two topics have become relevant over the period of time, है ना? और इसीलिए UPSC भी बार बार इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो मेजरली इसका जो रीज़न है इस टॉपिक का जो सिग्निफिकेंट टर्म्स में बढ़ने का, वो यही है कि जैसे जैसे हमने इकोनॉमी में कदम उठाए हैं, जैसे हमने इकोनॉमी को ओपन आउट किया है, राइट, और हमने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट सबको अलाउ किया है, लिबरलाइज किया है, राइट, प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ रहे हैं, हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, राइट, गवर्नमेंट का फोकस रहा है उस एरिया पर. सो ऑटोमेटिकली ये दो टॉपिक्स जो हैं सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं. ठीक है. Now in these two topics what I'll do is I will start with balance of payment first and then I'll move to the exchange rate part. ठीक है. So पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से और फिर हम चलेंगे एक्सचेंज रेट पर. ठीक है. Now let me start with balance of payment account in itself. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है. ठीक है. इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज BOP account. BOP account. At times you will see in newspapers they will mention India's balance of payment has gone in negative or it is in deficit, right? Or they may mention it is in surplus. So जब वो BOP की बात कर रहे हैं तो यही टॉपिक की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब नाम से पता चल रहा है कि अकाउंट है, दिस इज एन अकाउंट, राइट? एंड वी हैव स्टडीड अकाउंट अर्लियर ऑल्सो. एक बार पहले भी हम अकाउंट पढ़ चुके हैं. हमने पहले जब अकाउंट पढ़ा तो हमने बजट में कुछ अकाउंटिंग की थी, इफ यू रिमेंबर. एंड व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग बजट आई टोल्ड यू दैट बजट इज बेसिकली रिटन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? तो हम सरकार की जो जेब है, पॉकेट जो है, उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं. तो सरकार के लिए जो भी इनकमिंग होगा वो रिसिप्ट्स बन जाएगा, जो आउटगोइंग होगा वो एक्सपेंडिचर, राइट, गवर्नमेंट के लिए हो गया. So we basically try and categorize what are the total receipts and total expenditures. Total receipts and total expenditure, right?
और इसी में हमने क्या किया था बजट में, वी हैड डिवाइडेड द एंटायर अकाउंट इनटू टू पार्ट्स. वी हैड डिवाइडेड दिस इनटू रेवेन्यू और करंट अकाउंट, एंड सेकेंड वी हैड डिवाइडेड दिस इनटू कैपिटल अकाउंट, है ना, जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन भी है. कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंडेट करता है कि जब सरकार बजट प्रेजेंट करेगी तो अपने सारे ट्रांजैक्शंस इन दो फॉर्मेट्स में डिवाइड करके लिखेगी. ठीक है, तो वहीं से ही थोड़ा सा क्यों ले सकते हैं, राइट. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जब हम BOP बना रहे हैं, राइट, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी वी हैव टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स हियर. वी हैव करंट अकाउंट, वी हैव करंट अकाउंट एंड वी ऑल्सो हैव कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं होती, यहाँ रेवेन्यू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट. लेकिन अगर हम सेंस की बात करें, राइट, सो यू विल फाइंड दैट द कैटेगराइजेशन दैट आई डिड हेयर, राइट, जो मैंने कैटेगराइजेशन यहाँ किया था करंट और कैपिटल के बीच में, बिल्कुल वैसा ही कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा, राइट. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बजट एज एन अकाउंट and balance of payment account, budget is basically written from the point of view of government, right, be it central government or state government. तो सरकार के व्यू पॉइंट से लिख रहे हैं कि भाई सरकार के रिसिप्ट्स क्या हैं और सरकार के एक्सपेंडिचर क्या हैं, राइट. अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो सरकार के जो खर्चे होंगे वो भी रुपये के टर्म्स में होंगे, क्योंकि जब सरकार खर्चा करने जाएगी तो रुपए में ही खर्चा करेगी. मान लीजिए स्कीम्स लगा रही है, सब्सिडीज दे रही है, राइट, सैलरीज दे रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, तो सारा रुपये में खर्च कर रही है, राइट. और जो कलेक्शन हो रहा है, रिसिप्ट्स जो आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, विच मीन्स बजट नेसेसरली टॉक्स अबाउट रुपी फ्लो. बजट जो है हमेशा रुपये के फ्लो की बात करेगा. ठीक है. व्हेन यू कम टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंट्री, है ना. मान लीजिए कोई भी देश पिक कर लीजिए, भारत हमने पिक कर लिया, राइट. सो पॉइंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत में जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जिससे कि बाहर से वस्तुएं आई, बाहर से सेवाएं आई, या फिर भारत से सेवाएं गई, या भारत से जो है हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया. सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी रिटन इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट. सो व्हेन अकाउंट्स आर मेड बाय अ कंट्री with respect to rest of the world or with respect to the country also, right, some particular country also, then we say that it is a balance of payment account. ठीक है. so यहाँ पर हम simply क्या कर रहे हैं, हम एक देश ले लेंगे, राइट, कोई भी आप देश ले लीजिए. so take any country, for that matter let's take India only, right. Now I want to see what are all those transactions which have led to foreign currency incoming and foreign currency outgoing, right. ऐसे कौन से transactions हैं जिनके कारण foreign currency बाहर से भारत में आया है और भारत से बाहर गया है. ठीक है. so ये हो गया receipts और ये हो गया हमारा expenditure. बट ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर किस टर्म्स में है? दिस रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इज नेसेसरली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली. यहाँ पर हम रुपी फ्लो की बात नहीं करते हैं, राइट. देयर इज नॉट गोइंग टू बी रुपी फ्लो. हियर वी विल हैव फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो. फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट. अब कौन सी फॉरेन करेंसी होगी वो डिपेंड करेगा. That will depend, right. For example, if I'm trying to, let's say, write down balance of payment account of India and Australia, right, then the foreign currency involved here is Australian dollar. If I'm talking about, let's say, India and US, so the foreign currency involved here is going to be US dollar, right. चाइना की बात कर लेंगे तो चाइनीज करेंसी आ जाएगी, जापान की बात कर लेंगे जापानीज करेंसी आ जाएगी, राइट. सो व्हाट आर ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ विच फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड, राइट. फॉरेन करेंसी भारत में आ रही है. सो मेजरली आई बिलीव इफ वी आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, this will generate
फॉरेन करेंसी इनफ्लो इन द कंट्री, अगर भारत में से एक्सपोर्टर्स कुछ वस्तुएं बाहर किसी और देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली हमारे पास फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगा। सर्विसेज के केस में भी मान लीजिए इन्फोसिस ने कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके जो है यूरोपियन कंपनी को दिया, तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी रिसीव होगा, राइट। देन इफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड, मान लीजिए बाहर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, राइट, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तीसरा कंपोनेंट आ सकता है रेमिटांसेस का, राइट। सो मान लीजिए बाहर से, राइट, इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स ही बाहर रह रहे हैं, राइट। मान लीजिए कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है एंड दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर रिलेटिव्स इन इंडिया, राइट। सो रेमिट के फॉर्म में भी आ सकता है रेमिटांसेस। देन आई कैन ऑल्सो हैव लोन्स कमिंग इन, हो सकता है बाहर से लोन्स आ जाए, राइट, भारत सरकार के पास आ जाए, या ओवरसीज लेंडर्स जो हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को लेंड कर दें, जो हमने पढ़ा था ECBs, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के फॉर्म में, राइट। सो ऑल ऑफ दीज टुगेदर दे विल लीड टू फॉरेन करेंसी इनफ्लो इन इंडिया। इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी भारत में आएगी। सो मैं लिख देता हूँ इस यहाँ पे, फॉरेन करेंसी इनफ्लो इन द कंट्री। सिमिलरली यहाँ पर हम ग्रांट्स की बात भी कर सकते हैं। मान लीजिए भारत सरकार को बाहर की किसी एजेंसी से ग्रांट्स आए, राइट, सो ग्रांट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इनफ्लो। सो ये तो हुई बात फॉरेन करेंसी इनफ्लो की। व्हाट डू यू थिंक आर गोइंग टू बी कंपोनेंट्स व्हिच विल लीड टू फॉरेन करेंसी आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया? ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगा इंडिया से? सो आई बिलीव दिस विल मेजरली कंप्राइज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो यहाँ लिखा है उसी का बिल्कुल ऑपोजिट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें पता है कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, कुछ खास प्रोडक्शन है नहीं डोमेस्टिक, राइट। सो हम क्या करते हैं, मेजरली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 80 to 85% डिपेंडेंस इज ऑन outside countries only, right, imports only. So if India is importing crude, thereby India would have to spend money, India would have to pay in terms of foreign currency for that import, right. So इससे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। Similarly फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अब भारत से बाहर हो रही है, राइट। सो इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग आउटसाइड, इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये भी एक पोटेंशियल हो सकता है बिकॉज ऑफ विच फॉरेन करेंसी में आउटफ्लो। सिमिलरली जैसे यहाँ पर रेमिटांसेज हैं, इसी का काउंटर आ जाएगा यहाँ पे, राइट, फॉरेन नेशनल सेंडिंग मनी बैक होम, राइट। एंड फाइनली, राइट, इफ लेट्स से वी आर गिविंग लोन्स, मान लीजिए अगर हम लोन्स दे रहे हैं या फिर हम ग्रांट्स दे रहे हैं बाहर किसी को, राइट, सो दीज कंपोनेंट्स विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू आउटफ्लो। हमने सिंपल यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट, यहाँ पर लोन्स आ रहे थे, यहाँ हम लोन्स दे रहे हैं बाहर के एंटिटीज़ को, राइट, या फिर हम ग्रांट्स दे रहे हैं। मान लीजिए श्रीलंका क्राइसिस में है तो भारत ने कुछ ग्रांट दे दिया श्रीलंका को, नेपाल को दे दिया अर्थक्वेक के टाइम पर, राइट। सो ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ आई वांटेड टू डिपिक्ट दिस सिंपली जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू अ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे लिखे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, आप सिंपल क्या करिए, आप एक एक करके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उस कंट्री के, राइट, उसके साथ सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लीजिए इनफ्लो आउटफ्लो के, राइट। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया कनाडा हो गया, राइट, इंडिया US हो गया, इंडिया जापान हो गया, एंड देन यू क्लब ऑल ऑफ दिस टुगेदर। आप ये सारा डेटा एक जगह ले आइए। दिस विल गिव यू द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत में है ना ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनसे बाहर से किसी भी देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने से हमारे पास फॉरेन करेंसी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, राइट, उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड मिल गया। नाउ दिस रिकॉर्ड इन इटसेल्फ इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सो अगर हमें डिस्क्राइब करना व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, आई कैन से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट is account made by a country recording
all transactions in foreign currency with the rest of the world, and just put a note there, and you can write down that balance of payment account always talks about foreign currency inflow outflow. Balance of payment account talks about foreign currency इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट. सो यहाँ पर डॉलर फ्लो की बात कर सकते हैं, यूरो फ्लो की बात कर सकते हैं, पाउंड फ्लो की बात कर सकते हैं, येन फ्लो की बात कर सकते हैं, राइट. सो इट विल ऑलवेज टॉक अबाउट फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री इटसेल्फ. Okay, so as you can see, right, there are two components of balance of payment account. हमारे पास balance of payment account में majorly दो components हैं, as I've told you. First is your current account and second is called capital account. Remember, the current account is basically that account where any transaction which is regular in nature, right? For example, let's say it is comprising of export of goods or import of goods, plus all those transactions which will have a maturity period less than 1 year, right? All such transactions will be recorded under current account. So current account में हम किस चीज़ का रिकॉर्ड रखें? Current account basically will comprise of transactions which are regular in nature, right? जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट. सो क्रूड भारत जो है जुलाई में भी इंपोर्ट कर रहा था, जून में भी इंपोर्ट कर रहा था, मई में भी इंपोर्ट कर रहा था, राइट. चल ही रहा है, जब तक इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है तब तक ये रेगुलरली हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं. सिमिलर इज द केस फॉर एक्सपोर्ट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग सम कमोडिटी आउटसाइड, जैसे हम पॉलिश्ड डायमंड्स एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, या फिर हम गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं. सो हम जुलाई में भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, जून में भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट. सो दीज आर मोर और लेस रेगुलर इन नेचर. हो सकता है कि वैल्यू टर्म्स में चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हो, राइट, बट दीज ट्रांजैक्शंस आर मोर और लेस रेगुलर इन नेचर. ठीक है. प्लस रिमेंबर, these transactions have a maturity period less than 1 year, right. मतलब यहाँ पर बहुत लंबे समय का जो है कुछ कैपिटल फ्लो नहीं हो रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के बेसिस पर वी गेट सर्टेन रिसिप्ट्स, राइट, एंड दैट रिसिप्ट्स विल बी इनकैश्ड, राइट. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, राइट. दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड फॉर अ ईयर, मोर देन अ ईयर इटसेल्फ, राइट. सो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो है उनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम ही नजर आ रहा है, राइट. वन मोर थिंग दैट यू विल नोटिस हियर इज दैट दीज ट्रांजैक्शंस इन देमसेल्व्स, राइट, the nature of the receipt in this account will be that it is more or less in the form of permanent receipt. अगर यहाँ पर कुछ पैसा आ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ डॉलर आ रहा है, यूरो आ रहा है, पाउंड आ रहा है, कुछ मनी आ रहा है, that money is going to be in the nature of permanent receipts. It will not have any kind of repayment liability. ठीक है. So ये तो है हमारा current account. Moving forward to capital account. Capital account is just the opposite of this, right? कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. कैपिटल अकाउंट विल बेसिकली कंप्राइज ऑफ ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच आर इरेगुलर इन नेचर. वैसी सारी ट्रांजैक्शंस जो इरेगुलर इन नेचर हैं, प्लस ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच विल हैव अ मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर, एंड दिस विल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ ट्रांजैक्शंस विच विल कैरी सम रीपेमेंट लायबिलिटी. ठीक है. सो मैं इसको बिल्कुल ऑपोजिट लिख सकता हूं यहाँ पे. आई कैन से ट्रांजैक्शंस विच आर इरेगुलर इन नेचर. Secondly, I can say transactions which have maturity period more than 1 year. And third, and the most important one, the transactions, especially the receipts here, right? Receipts here
carry repayment liability, carry some repayment liability, जबकि यहाँ नहीं है, राइट? देयर इज नो रीपेमेंट लायबिलिटी इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. ठीक है. नाउ लेट मी टेक यू टू ईच ऑफ दीज अकाउंट्स, राइट, बिकॉज दैट इज द मेजर पार्ट हियर, है ना. डेफिनेशन से हमें जो है कंटेंट नहीं हो सकते. हमें क्या करना है, हर अकाउंट में क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने बजट में किया, same kind of procedure we have to follow here. We have to understand what is going to be each of the terms, right? What is each of the components of both these accounts. So हमारे पास करंट अकाउंट में क्या कंपोनेंट्स है, कैपिटल अकाउंट में क्या कंपोनेंट्स है, क्योंकि क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वहीं से बनती है. ठीक है. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टर्म्स लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, एटसेट्रा. Okay, let's begin with current account, components of current account. So you can give the heading components of current account. Components of current account majorly involve two major components. यहाँ पर दो major components है हमारे पास. पहला component है net exports and the second component is net invisibles. ठीक है. Net exports and net invisibles. Net exports. Now when we talk of net exports here, we are majorly talking about export and import of goods only. ठीक है. So आप इसके ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं that we are primarily talking about goods here, goods and goods only, right? और यही इसका फॉर्मूला भी है. So net exports is nothing but export of goods minus import of goods minus import of goods. So export of goods minus import of goods. अब इस टर्म को ना, नेट एक्सपोर्ट्स को हम बहुत अलग अलग नामों से भी जानते हैं. ठीक है. सो दिस टर्म नेट एक्सपोर्ट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड. अगर ये आपको एक टर्म दिख रहा है कहीं पर विजिबल ट्रेड, इसका मतलब भी यही, इसी की बात हो रही है, नेट एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है. देन एट टाइम्स दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मर्चेंडाइज. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड. ठीक है. सो अगर कहीं पर ये टर्म नजर आए, मर्चेंडाइज ट्रेड, विजिबल ट्रेड, इट मीन्स द सेम थिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स ओनली, राइट. Now one of the most technical terms by which this is known is called balance of trade. ठीक है. So इसी को हम कहते हैं balance of trade, balance of trade, right? In short this is referred to as BOT, balance of trade, BOT. ठीक है. This is our first component. First component. Second component that we have is net invisibles. Net invisibles. Please follow the same numbering here. Net invisibles. So आप देख के समझ पा रहे हो हमने क्या किया है. We have basically divided this into goods and this will now start talking of services primarily. राइट. सो टैंजिबल्स को ऊपर ले लिया, इनटैंजिबल्स को नीचे ले आए. सर्विसेज प्राइमरली. ठीक है. सर्विसेज प्राइमरली. नाउ लेट मी टेक अ फ्रेश स्क्रीन एंड लेट मी राइट डाउन दीज कंपोनेंट्स नाउ. सो आई हैव नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स तो हम लिख चुके हैं, राइट. लेट मी राइट दिस अगेन हियर. दिस इज सिंपली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स minus import of goods, also depicted as EG minus IG, right. इसी को हम कह देते हैं visible trade और merchandise trade.
merchandise trade, this is also called as balance of trade, balance of trade, right? Then we have the second component, which is net invisibles, net invisibles. So net invisibles will contain primarily services. Net invisibles in itself comprises of 3 components. यहाँ पर हमारे पास 3 components हैं. नंबरिंग आप सेम मेंटेन करना. So 3 components क्या क्या हैं? We have net service exports, which in short is also referred to as NSX at times. Then we have net factor income from abroad. इसको भी हम शॉर्ट में रेफर करते हैं as NFIA. And the third component is net transfers. ठीक है. So पहला जो component है net service exports, ये क्या है? See, net service exports is nothing but export of services minus import of services. Export of services minus import of services. Minus import of services. ठीक, ये हो गया पहला component. Second component that we have here is net factor income from abroad, NFIA. Now remember that NFIA in itself is sub-categorized. NFIA को जो है हम further sub-divide करते हैं, sub-categorize करते हैं, right? Now we know for a fact that this is nothing but factor income, and factor income is always generated on factors of production. We have 4 factors of production: land, labor, capital, enterprise, right? So हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे, उस पर जो इनकम जनरेट होगी उसको अलग लिखेंगे, और बाकी 3 की इनकम जो होगी उसको अलग लिख देंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट कंपोनेंट हियर इज गोइंग टू बी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसका जो फर्स्ट सब कंपोनेंट आएगा इज गोइंग टू बी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Remember to mention the term net here. So it is net compensation of employees. Net compensation of employees. Employees है, इसका मतलब क्या कहानी हो रही है यहाँ पर, right? Factor of production that is being considered here is labor. With respect to labor, whatever is the salary or wages that are being provided to the people, right, for providing labor has been categorized separately, right? So भारत से ऐसे लोग जो बाहर गए हैं, बाहर जाके लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले कुछ सैलरी या वेजेस मिल रही हैं, उसको हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है. सिमिलरली पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु हैव कम टू इंडिया, हु आर वर्किंग इन इंडिया, प्रोवाइडिंग लेबर हेयर एंड आर जनरेटिंग सर्टेन सैलरीज और वेजेस, दैट विल बी डिडक्टेड, राइट? सो बाहर जाके जो भारतीयों ने काम किया वो पॉजिटिव में ले लो, जो बाहर से आके लोगों ने यहाँ काम किया और सैलरी जनरेट करी उसको नेगेटिव में ले लो. दोनों को एक साथ ले लिया तो क्या मिल गया? वी गेट नेट कॉम्पनसेशन. सो नेट का मतलब है आउटगोइंग, इनकमिंग सब एक जगह ले लिया और फाइनल सम अप करके हमने लिख दिया नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर इसे कह सकते हैं नेट सैलरीज और नेट वेजेस. ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट दैट वी हैव हियर इज नेट इन्वेस्टमेंट इनकम. नेट इन्वेस्टमेंट इनकम. Now this is relatively very easy to understand also. आपको टर्म देख के ही समझ में आ रहा होगा. हम इन्वेस्टमेंट इनकम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहले इन्वेस्टमेंट होगी, राइट? देयर मस्ट बी सम इन्वेस्टमेंट हियर. सो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग लैंड. Once I've purchased land, right, let's say I've built a building there or I've built a house there, I will get some rental income on it, है ना? So investment income में क्या क्या आ सकता है? Rent आ सकता है. Then second component can be that I've given money as capital over which I am generating some interest back. मैंने कुछ पैसा दिया और इस पर अब मुझे इंटरेस्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ, राइट? सो इंटरेस्ट इनकम हो सकती है. और थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी दैट आई हैव ओपनड एन एंटरप्राइज आउटसाइड. मैंने कोई कंपनी खोली बाहर, राइट? एंड दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज नाउ जनरेटिंग सम प्रॉफिट और लॉस फॉर मी. सो whatever it is, profit or loss as per the situation, right? मैं उसको total consider कर लूँगा and then I will get, by adding all three of them, right, rent, interest and profit, I will get net investment income,
राइट। आपको याद रखना है कि यही सिमिलर सिनारियो आपको बाहर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी करना है। इफ सम foreign entrepreneur has opened a company in India and is generating profit in India, so net has to be taken, right? So आप उसे नेगेटिव में कंसिडर कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट में भी if foreign investors have let's say lent capital and are generating some interest, so that will be taken into negative and that will be subtracted. Similarly, if foreigners have purchased land in India and are generating rental income, so that will be considered as negative, that will be subtracted. राइट ये सब कहानी क्यों कर रहे हैं आपको समझना है। हम नेट के लिए कर रहे हैं, है ना। नेट शब्द में क्या करते हैं, अगर भूल गए हो तो दोबारा याद दिला देता हूं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ नेट, व्हेन वी टॉक ऑफ नेट, राइट, नेट का मतलब क्या है, जो आउटगोइंग है, राइट, और जो इनकमिंग है, सब एक जगह लेना है, राइट। वी हैव टू टेक दिस एट वन प्लेस, राइट। सो इफ इनकमिंग इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो अगर ये x है, दिस विल बी टेकन एज -y। अब दोनों को ऐड कर दो, सो ये बन गया x माइनस वाई, राइट। दिस विल गिव मी नेट इनकमिंग, दिस विल गिव मी नेट इनकमिंग। नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली बात ये है कि भाई बाहर ही जा रहा है, आ नहीं रहा है कुछ भी देश में, राइट। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। चलो, so this is our net factor income from abroad, right? Now some of you might be wondering that sir why do we divide this into two parts? इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड करने की नीड पड़ी? Why are we dividing this into net compensation of employees and net investment income? See, if you compare this or if you look at this from India's perspective, it becomes a bit important for us to categorize it, because you can also understand that of the four factors that we have, four factors of production, majorly it is labor which is contributing the most, है ना। अगर हम चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करें तो ज़्यादातर भारतीय यहाँ से जाके बाहर जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसके कारण वापस कुछ इनकम जनरेट हो रही है देश के लिए, है ना, कुछ रिसिप्ट्स आ रहे हैं देश में। सो दे विल बी वर्किंग आउटसाइड एंड देन दे विल बी सेंडिंग मनी बैक होम टू द रिलेटिव्स। पेरेंट्स हैं, है ना, स्पाउसेज हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, सो दे विल बी सेंडिंग मनी बैक होम। सो ऑटोमेटिकली दिस विल जनरेट मोस्ट अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स, बट कंपेरेटिवली दीज थ्री विल नॉट बी जनरेटिंग मच, है ना। कितने भारतीय होंगे भाई जिन्होंने जो है बाहर जाके ज़मीन खरीदी और रेंटल इनकम आ रही है? बहुत ही कम होंगे, राइट। सिमिलरली बहुत ही कम हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने बाहर लैंड किया है, यस और नो, राइट। Thereby we have categorized it separately, and now please consider, please understand this, because we have categorized it, it becomes very easy for us to keep a track of it, है ना। आप सोच के देखो कि भाई मान लीजिए किसी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट इन टाइम में अचानक से हम देख रहे हैं कि ये नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कम हो रहा है, ठीक है, किसी भी क्वार्टर में, मान लीजिए आने वाला क्वार्टर ही है हमारे पास, राइट। सो लेट्स टेक जुलाई अगस्त सितंबर, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर में हम अचानक से देख रहे हैं कि हमारा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज घट रहा है, राइट। दिस मीन्स दैट मे बी सम कंट्री इज पुटिंग अप हिंड्रेंसेस फॉर इंडियंस टू कम एंड वर्क देयर, है ना। मान लीजिए वीज़ा फ़ी बढ़ा दिया या कुछ बढ़ा दिया। नाउ दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू टेक action here, right? So this will allow the government to go and talk to that country, negotiate, right, try and understand their problem, why are they doing this, right? तो क्या है, वो एक negotiation का एक सिलसिला चलेगा जहाँ पर इंडिया जो है उस कंट्री से बात करेगा कि भाई क्यों कर रहा है, why are you doing this, right? If you want something from us, you ask us directly, we'll negotiate and out when we'll try and reduce this so that Indians can go outside and work, है ना। तो सिंपल ये है कि हमें पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ये कैटेगराइजेशन चाहिए। दिस इज मोर ऑफ अ कन्वीनियंस, राइट, दैट वी हैव क्रिएटेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। वो अकाउंट्स ही के जिसमें हम जिसको देख के हम समझ ही ना पाए कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। सो अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ, दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन periods in time, right, and thereby we can take policy initiatives to back it up, ठीक है। You will understand this more when I start writing this down. जब आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, what is the importance of net invisibles, then you will understand much more, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो। Then the third component that we have here is your net transfers. Net transfers.
नेट ट्रांसफर्स आपको समझना है, ट्रांसफर्स आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल पेमेंट्स। ट्रांसफर्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, राइट। दे विल नॉट हैव एनी कंपोनेंट इन रिटर्न। जैसे आपके घर पे रिलेटिव्स आए, राइट, जाते समय आपको कुछ पैसे पकड़ा के गए, राइट। सो इफ दे आर गिविंग यू दैट कंपोनेंट ऑफ मनी, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनी सेट ऑफ गुड्स और एनी सेट ऑफ सर्विसेज इन रिटर्न, यस और नो, राइट। तो वो क्या है, अपने आप में ट्रांसफर है, राइट। सिमिलरली जैसे हमने सब्सिडीज की बात की थी, सब्सिडीज आर ट्रांसफर्स, हमने टैक्सेस की बात की थी, टैक्सेस आर ट्रांसफर्स, राइट। सो यहाँ पर नेट ट्रांसफर्स, राइट, व्हेन वी से नेट ट्रांसफर्स, व्हाट कैन बी दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर यूनिडायरेक्शनली फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो यूनिडायरेक्शनली बाहर से देश की तरफ फ्लो कर रहे हो या देश से बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हो, राइट। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स हियर, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। The first component that we have here is your private transfers. In fact, it is net private transfers. Net private transfers. नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स में क्या आएगा, राइट। सो लेट्स से देर आर सर्टेन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट, हु आर लिविंग अब्रॉड, हु may have given up on the citizenship of India, but their forefathers were from India, right, and thereby these people who are living abroad, they still have certain relatives living in India. इनके अभी भी कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी इंडिया में रह रहे हैं, राइट। thereby net private transfers will comprise of, right, transactions which are made by these people who are living outside when they send money back home, right. So जब ये अपने घर अपने रिश्तेदारों के पास पैसा भेज रहे हैं, so that will come under net private transfers, है ना। होली दिवाली पे भेज देते हैं कि भाई गिफ्ट ले लो, ये ले लो, राइट। सो इस फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट, याद रखो मैं यहाँ पे इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव इंडियन सिटीजनशिप। बाहर जो लोग काम करने गए हैं, इंडियन सिटीजनशिप पर हैं, वो यहाँ आ गया, राइट। दैट विल कम अंडर नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। आई एम टॉकिंग अबाउट NRIs, राइट, who may have given up on Indian citizenship but still have relatives living in India. Now, if they are sending money back home to their relatives living here in India, then that will be considered under net private transfers. ठीक है, सो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, money sent by persons of Indian origin or foreigners with Indian origin to their relatives in India. ठीक है, so this will come under net private transfers. Similarly, there may be some foreigners, हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, right? ऐसे लोग हो सकते हैं, there might be some foreigners who have given up on their foreign citizenship, right? And would have taken in citizenship here. भाई ऐसे लोग भी होंगे ना, कुछ मान लीजिए दाएं बाएं देशों के लोग आके यहाँ पर सिटीजनशिप ले ली, राइट। Now if these people are sending money back home to their relatives, that will be considered as negative here, right? So plus minus वो negative में ले लिया, so automatically you get net private transfers. I am telling you this is not going to be a huge chunk of number, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री से over the period of time migrational outflow है, inflow बहुत कम है, ठीक है। Second component that we will have under net transfers is going to be official transfers, है ना। We will have the term net again here, net official transfers. नेट ऑफिशियल ट्रांसफर्स क्या होंगे, जहां टर्म ऑफिशियल दिख जाए, राइट। ऑफिशियल का मतलब ये है कि कुछ है ना अथॉरिटी है, राइट। अथॉरिटी कौन है, सरकार है, राइट। सो इफ गवर्नमेंट इज रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ मनी which is unidirectional, or if let's say we are giving money to some other foreign government which is again unidirectional, that will come under net official transfers, right? तो जैसे मान लीजिए भारत में कुछ क्राइसिस हुआ, भारत में बाहर वर्ल्ड बैंक ने कुछ एड दिया, राइट। अब एड में दो तरह का एड दिया, एक लोन दिया, दूसरा ग्रांट दिया, राइट। सो लोन तो यहाँ नहीं लिखेंगे, बट द ग्रांट्स दैट हैव बीन गिवन
Grants do not carry any kind of repayment liability. Grants are unidirectional. So grants will be written here, right? Similarly, let's say we have given grants to Sri Lanka. हमने कुछ grant श्रीलंका को दिए तो उन्हें subtract कर दो, right? That will come under net official transfers. Official शब्द का अर्थ है कि receiving end पर हमेशा सरकार होनी चाहिए. Simple, right? If on the receiving end, if you have government authority, then it is an official transfer in itself. So you can see very clearly these are the components, right? Now I believe some of you might be confused that which of the two is exactly remittances. दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें पूरे अकाउंट में आपने remittances तो कहीं नहीं लिखा, ठीक? तो remittances exactly है क्या? So let me clarify on that. So remittances as a term is not exactly featuring here, but what exactly makes up remittances is here. ठीक है? तो remittances क्या है? Remittances में बाहर से पैसा आ रहा है, इंडियन रेजिडेंट्स के पास आ रहा है, और मेजरली पैसा कहाँ से आ रहा है? या तो खुद के रिलेटिव्स, खुद के बच्चे, राइट, स्पाउसेस, हस्बैंड, वाइफ भेज रहे हैं, राइट, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भेज रहे हैं, राइट. सो रेमिटांसेस बेसिकली इंक्लूड्स टू थिंग्स. रेमिटांसेस विल इंक्लूड दिस नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, it will include net compensation of employees, and second component that it will include is net private transfers. ठीक है, तो इसका आप separately अलग से लिख सकते हैं. On some sidelines you can write this down that remittances is equal to net compensation of employees plus net private transfers. Net private transfers. So if you add these two together, this will give you remittances. आपको याद रखना है remittances exactly as a term तो फीचर नहीं करता, लेकिन इसके जो दोनों कंपोनेंट जो बनाते हैं remittances वो दोनों हमने देख लिया फीचर करते हैं. ठीक है, so this is called remittances. Next that I would like to discuss in current account is the concept of deficit and surplus. ठीक है, I want to discuss with you the concept of deficit and surplus. Deficit क्या है, surplus क्या है, right? See, deficit is when you have something less. Deficit का मतलब किसी चीज़ की कमी होना, right? So deficit simply means that we have something less, which means that the expenditure is much more as compared to the revenue part, as compared to the receipt part, right? And the vice versa is going to be for surplus. Deficit का मतलब simply हो जाएगा, right? Deficit का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास कमी है, right? We have something in less. ठीक? Which means our expenditures are going to be more than revenue or more than receipts. So this will be deficit, right? Opposite क्या होगा, वो surplus हो जाएगा. Surplus का मतलब है कुछ अधिक में होना, कुछ अति में होना, कुछ over होना, right? So surplus means that we have something in excess, over है, ज़्यादा है, right? Which means our expenditures now are less than receipts. Are less than receipts. ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट उठाना है और इसको हमें पुट अप करना है. वी हैव टू पुट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस इन करंट अकाउंट, राइट? सो करंट अकाउंट में वी हैव टू कंपोनेंट्स. द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स. तो चलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पे. दिस इज अ नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स में आई सी दैट आई हैव एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आई हैव इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, दोनों को ले लिया एक जगह. एंड व्हाट आई गेट इज विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट? सो इफ आई मीन in this account if I put up the concept of deficit and surplus, I need to understand which is that term which is giving me expenditures and which is that term which is giving me receipts. इन दोनों में से कौन सा टर्म है जो मुझे एक्सपेंडिचर दे रहा है और दूसरा टर्म जो मुझे रिसिप्ट दे रहा हो, राइट? सो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, सोच के देखो, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ गुड्स को, दिस विल गिव मी फॉरेन करेंसी, विच मीन्स दिस इज नथिंग बट रिसिप्ट्स,
दिस इज नथिंग बट रिसिप्ट्स. एंड इफ आई गो फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर मैं बाहर से वस्तुएं खरीद रहा हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू पे फॉरेन करेंसी. सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर. ठीक. और डेफिसिट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन डेफिसिट? इन डेफिसिट माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स. ठीक है ना. सो अगर मुझे निकालना हो ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, क्या होगा? सिंपली अप्लाई द लॉजिक. माई ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट will simply mean that my export of goods, जो मेरा export है, that is less than import of goods. My export of goods is less than import of goods. ठीक है ना. एक्सपोर्ट करने पे मेरे पास रिसिप्ट्स आया, सो रिसिप्ट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, BOT डेफिसिट. ऑपोजिट है इसका ट्रेड सरप्लस. द ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज ट्रेड सरप्लस. सो व्हाट विल बी ट्रेड सरप्लस और BOT सरप्लस? BOT सरप्लस, BOT सरप्लस क्या होगा? यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो अब ज्यादा होगा. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वैल्यू टर्म्स में ज़्यादा है, राइट. एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज गोइंग टू बी लेसर. इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज गोइंग टू बी लेसर, है ना. कॉन्सेप्चुअली तो अब हम समझ गए हैं, राइट. अब बचता है प्रैक्टिकली इसे समझना, राइट. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, try and think of India's balance of payment account and try and think specifically of India's current account. अब भारत के करंट अकाउंट के बारे में जरा सोचो, ठीक है, कि भारत ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो इंपोर्ट कर रहा है और कौन सी ऐसी वस्तुएं जो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट. एंड बाय केयरफुली थिंकिंग ओवर इट, टेल मी आउट ऑफ द टू विच कंडीशन विल एग्जिस्ट फॉर इंडिया. भारत के लिए जनरली कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? विल इट बी ट्रेड डेफिसिट और BOT डेफिसिट, और इज इट गोइंग टू बी ट्रेड सरप्लस or balance of trade surplus? Think over it. So I believe guys you must have figured this out by now, right? क्या रहेगा? So majorly if you look at India's nature of exports and nature of imports, अगर आप भारत का ये nature of export और nature of import देखें, right? So majorly भारत जो export कर रहा है वो agricultural commodities हैं, sugar हो गया, rice हो गया, right? But the nature of imports is actually critical. भारत के जो imports हैं they will comprise of things like crude oil. Now without crude oil, right, production in different sectors, in different industries will come to a halt. Our transportation sector will entirely come to a halt, which means even though if we produce something in the fields or in the industry, that will not be transported finally to the urban markets. जहाँ markets exist करते हैं, जहाँ consumers बैठे हैं, वहाँ तक transport ही नहीं कर पाएंगे, तो production भी sense नहीं बनाएगा, right? Then we import chemicals. Chemicals again are important for certain sectors, for certain industries. Without them, the industry cannot function. जैसे अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के देखो, सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वी वर इम्पोर्टिंग APIs, है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. सो API के बिना वो मेडिसिन ही नहीं बन सकती, राइट. सो फाइनल जो है, अगर हम फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, सो बिना API इम्पोर्ट करे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सिमिलरली इफ़ वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आवर एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट. चिपसेट्स मंगा रहे हैं, स्क्रीन्स मंगा रहे हैं, कीपैड्स मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा ही रहे हैं, राइट. सो आवर नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स एट टाइम दे बिकम क्वाइट क्रिटिकल फॉर द इंडस्ट्रीज टू फंक्शन एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, राइट. आर इम्पोर्ट्स आर मच मोर पीरियोडिक इन नेचर. ये रेगुलर हैं, पीरियोडिक हैं, राइट. जबकि ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है. सो एग्रीकल्चर सीजन में जब प्रोडक्शन होगा, सरप्लस होगा, ओनली देन विल बी एबल टू एक्सपोर्ट देम आउट. Thereby majorly for India, this condition will hold true. This condition of trade deficit will hold true. So 9 out of 10 times, right, majorly we will have a BOT deficit or a trade deficit, balance of trade deficit मिलेगा, या फिर हमें trade deficit की situation देखने को मिलेगी. मैं 9 out of 10 क्यों कह रहा हूँ, right? What is that 1 out of 10 possibility?
ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जब ये ट्रेड सरप्लस हो सकता है ना? आई विल टेल यू दिस थ्रू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो समवेयर इन द ईयर 2020 वी फाउंड दिस टू बी कमिंग ट्रू, है ना. हालांकि अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत कम बार ये देखा है, राइट, लेकिन 2020 में हो गया, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में हुआ. सो द एंटायर वर्ल्ड वॉज बैटलिंग आउट विद पैंडेमिक, राइट. आवर इंडस्ट्रीज वर क्लोज डाउन, मेजरली सेक्टर्स वर क्लोज डाउन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वॉज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर अ मेजॉरिटी पार्ट, है ना. 2-3 महीने तो बेसिकली बंद ही रहे. अब क्या हो रहा है, राइट, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, वो तो हो रहा है, राइट, इट हैज़ रिटेन्ड मोर और लेस इन वैल्यू, बट आर इम्पोर्ट्स स्टार्टेड टू कम डाउन, स्पेशली आर इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट्स, मशीनरी, केमिकल्स एटसेट्रा, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑल्सो, है ना. डिमांड फॉर क्रूड ऑल्सो वेंट डाउन, प्लस प्राइसेज ऑफ क्रूड ऑल्सो वेंट डाउन. Internationally, if you look, demand for crude went down and prices for crude went down. Thereby, this term, the import of goods, it started to come down, है ना. Import of goods जो है value terms में कम हो रहा है. अब जैसे जैसे ये कम हुआ, right, for approximately 10 to 11 months in 2020, we found that India had a condition of trade surplus. भारत को trade surplus की condition मिल रही थी. बट वी नो दैट एज द इकोनॉमी अगेन स्टार्ट्स टू रिकवर बैक, जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगा, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन इज वी विल अगेन स्टार्ट इम्पोर्टिंग एंड देयर बाय वी विल अगेन हैव अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट विद अस, ठीक है. सो इस अकाउंट में मेजरली हमें ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है. कोशिश क्या करेंगे, राइट, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर अटेम्प्ट? आवर अटेम्प्ट शैल बी टू हैव दिस as much less negative as possible. जितना कम से कम नेगेटिव हो पाई है उतना मेंटेन करें, ठीक है. सो आप एक नंबर लाइन इमेजिन करो, इमेजिन अ नंबर लाइन, राइट, नंबर लाइन इमेजिन करो, इमेजिन दिस टू बी 0, राइट. सो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे पॉजिटिव, जो हम इंपोर्ट करेंगे उससे नेगेटिव. सो यहां से बढ़ के हम यहां तक पहुंचे, एक्सपोर्ट किया, राइट, बट हमारा इंपोर्ट काउंटर कर देगा इसे. सो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा, राइट, ज़्यादा है. आवर अटेम्प्ट शुड बी, राइट, दैट द नेट समेशन, राइट, जो नेट निकले वो कम से कम निकले. ये जो नेगेटिव टर्म्स में 0 से इधर वैल्यू है ये कम से कम हो, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा होता है, राइट, इफ दिस इज टू मच, then this will require government to take action, government to step in, where the government will try and look for substitutes of non-critical imports. भारत के जो non-critical imports हैं उन्हें कट डाउन करने की कोशिश करेगा, जैसे कि gold, right? So if you remember in markets also I was teaching you that gold instruments are floated in the market as alternatives to physical gold itself, right? For example, if the investor is buying it only for investment purposes and not for consumption purposes, then maybe to make it lucrative, right, we would float down instruments so that demand for physical gold remains low and thereby the import of gold also remains low. Compare भी कर सकते हो ना आप, you can compare कि crude, machinery, spare parts, chemicals के मुकाबले अगर gold देखें तो gold अपने आप में non critical है ना. gold के बिना चल जाएगी इकोनॉमी, फिर भी सर्वाइव ऑफ कर जाएंगे, लेकिन इसके बिना इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है. ओके, सो गाइज नेक्स्ट लेट्स अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस ऑन नेट इनविजिबल्स. अब इस नेट इनविजिबल्स पे लगाते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस. सो आई हैव 3 कंपोनेंट्स हियर, मेरे पास 3 कंपोनेंट है, ठीक. So net invisibles deficit क्या होगा? Net invisibles will be in deficit if I add all the 3 components of net invisibles and it still ends up less than 0, ठीक है. So अगर मैं ये 3 components को add कर दूं, net service exports plus net factor income from abroad, and I also add up the third component which is net transfers, and if I find this to be less than 0, तीनों को ऐड करने के बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी भी ये 0 से कम है,
राइट, दिस मीन्स आई हैव इनविजिबल्स डेफिसिट, इनविजिबल डेफिसिट, ठीक है ना। इनविजिबल सरप्लस क्या होगा? सो माई नेट इनविजिबल्स will be in surplus if all these three now, right, net service exports plus net factor income from abroad plus net transfers is going to be more than zero. अगर ये ज़ीरो से बड़ा है, right, if it is greater than zero, then automatically I will have a case of net services, net invisibles surplus, ठीक है। थ्योरेटिकली तो ये हो गया सिंपल, राइट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट डू यू थिंक इज द केस फॉर इंडिया? भारत के लिए हमें क्या केस देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तीनों अगर देखें कंपोनेंट्स, इफ आई ऐड ऑल थ्री ऑफ देम फॉर इंडिया, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट में आप क्या ले रहे हो? आप यहाँ पे आईटी सर्विसेज ले रहे हो जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है ना, जहाँ पर व्यक्ति के जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सर्विस प्रोड्यूस करी और एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपके पास दो कंपोनेंट है, आपको याद होगा, राइट। सो वी डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। क्या थे वो दो पार्ट्स? वी हैड नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड वी हैड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है, या ये कंपोनेंट कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? एंड थर्ड कंपोनेंट नेट ट्रांसफर्स, राइट। सो ओवरऑल समराइज अगर हम करें, ओवरऑल अगर हम समराइज करें, राइट, what situation do you think we will have? Net invisibles deficit or net invisibles surplus? Think over it. So I believe guys by now you must have figured it out, है ना, figure out कर लिया होगा। So when it comes to net services or net invisibles, if I look at the three terms, net service exports, भारत जो है IT सर्विसेज दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट से ले रहे हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लेते हैं, विंडोज़ लेते हैं, राइट। लेकिन भारत की कंपनीज़ हैं, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ये सारी कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज दे रही हैं, जो सॉफ्टवेयर्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, राइट। सो नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ये मेजरली सरप्लस में कंट्रीब्यूट करेगा। देन NFIA विल कंट्रीब्यूट, है ना। तीनों में अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, इट इज़ दिस कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट, राइट। देन दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट एंड इन दिस NFIA इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट हमने बात करी थी, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट, नॉट द सेकेंड वन, राइट। इन्वेस्टमेंट इनकम तो ज़्यादा नहीं है, हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो इनकम कहाँ से आएगी, राइट। लेकिन पहला कंपोनेंट नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। जबकि तीसरा जो है नेट ट्रांसफर्स, इसमें ऑफिशियल ट्रांसफर ज़्यादा नहीं है अब, राइट। इंडिया डज नॉट रिलाई मच ऑन ग्रांट्स दीज डेज, राइट। उस ज़माने बीत गए, राइट, जब भारत को ज़रूरत थी। अब भारत अपने आप में एक ऐसी इकॉनमी है जो खुद के लिए प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। सो नेट ट्रांसफर्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं एंड in we are not relying on official transfers but we still do have some private transfers। आज भी भारत में कुछ ना कुछ प्राइवेट ट्रांसफर्स आते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है मेजरली इट इज़ नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, है ना, जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। देन इट इज़ NFIA एंड देन नेट ट्रांसफर्स ऑल्सो इज कंट्रीब्यूटिंग। देयर बाय वी हैव अ सिचुएशन ऑफ नेट इनविजिबल सरप्लस फॉर इंडिया। ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है इंडिया के लिए। नाउ लेट मी डू द सेम एक्सरसाइज, ठीक है। सो हमने वही स्केल बनाया, राइट। सो स्केल पे अगर हम देखेंगे, इफ दिस इज माय 0th पॉइंट, आई फाइंड दैट इंडिया विल हैव नेट सर्विसेज और नेट इनविजिबल्स सरप्लस, नेट इनविजिबल्स सरप्लस की कंडीशन मिलेगी, ठीक है, नेट इनविजिबल सरप्लस।
Now my next task is to understand whether I have current account deficit or I have current account surplus. ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास जो करंट अकाउंट है उस करंट अकाउंट में हमारे पास डेफिसिट है या सरप्लस है, राइट. सो आई कम टू माई करंट अकाउंट. So in current account, I can have both the possibilities. I can have deficit also, I can have surplus also. So when will I say I have current account deficit? I will have current account deficit if my net exports and net invisibles will be less than 0. And I will have current account surplus if my net exports and net invisibles is greater than 0. Yes or no? Right? सिंपल है ये तो. दो कंपोनेंट्स हैं अकाउंट में, दोनों को ऐड किया, लेस देन 0 है तो डेफिसिट, ऐड किया, राइट, और 0 से बड़ा आया तो सरप्लस, राइट. ना आउट ऑफ दीज टू विच वन डू यू थिंक इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया? भारत के लिए कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, राइट. क्या हमारे पास करंट अकाउंट में रिसिप्ट्स आ रहे हैं या आउटफ्लो है, नेट आउटफ्लो है करंट अकाउंट से, ठीक है. सो नेट अगर इनफ्लो है दिस मीन्स वी हैव सरप्लस, अगर नेट आउटफ्लो है देन वी हैव डेफिसिट्स. सो गाइज आई बिलीव यू मस्ट हैव फिगर्ड दिस आउट बाय नाउ. ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट. आपको सिंपली क्या करना है, आपको भारत के टैंजिबल्स देखने हैं, टैंजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड यू हैव टू लुक एट इनविजिबल्स. सो इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन, नंबर लाइन की तरह हमने बना लिया, ठीक है. ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, दिस इज़ माई 0th पॉइंट. नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस नेट एक्सपोर्ट्स इज गोइंग टू पुल दिस टूवर्ड्स नेगेटिव. ये इसे नेगेटिव की तरफ खींच के ले जाएगा, ठीक. तो मान लेते हैं भाई इतना नेगेटिव हो गया, एंड आई ऑल्सो नो दैट माई नेट इनविजिबल्स रिमेन्स इन सरप्लस, सो दिस विल पुल इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ये इसे पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, ठीक. लेकिन जब हम वैल्यू टर्म से देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड? जो नेट रिजल्टेंट है, राइट, द नेट रिजल्टेंट ऑफ द टू, I find that it is majorly towards the negative region, majorly towards the negative part. So I find it is in the nature of CAD, current account deficit. So इंडिया के केस में ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है करंट अकाउंट डेफिसिट की, ठीक है. और उसका प्राइमरी रीज़न है ये नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स. सो क्रिटिकल नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, आई मीन टिल द डे दे आर ऑफ क्रिटिकल नेचर, till the day we don't have substitutes to those imports, till that day, right, majorly India's exports will keep India's imports will keep increasing as compared to its export of goods, right. Second possibility could be that India finds something where India is able to add a value and India becomes a major exporter of it, है ना. जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इंडिया इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करें, एंड देन वी आर एबल टू एक्सपोर्ट आउट प्रोसेस्ड फूड, राइट, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So if we are able to find any such commodity which we are able to export out in very high proportion and it is recurring, it is regular, right, and we are able to balance out that export with the import factor, then there is a possibility that this may, right, I mean this will start going into lesser deficit. ये नंबर जो है ना ये कम होता चला जाएगा, ये कम यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके डेफिसिट ये रिसीड करेगा, जीरो की तरफ आएगा, ठीक है. नाउ व्हेन डू वी से इट इज़ अ गुड ईयर फॉर इंडिया, है ना. इस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कब कहते हैं कि साल अच्छा रहा? साल अच्छा तब रहा, राइट, जब भारत का पहली चीज़ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम रहे, राइट, मतलब ये अपने आप में कम रहे, और साथ साथ भारत के अगर ट्रेड डेफिसिट को ये बैलेंस कर दे, if invisible surplus is able to balance it out, bring the overall number of current account somewhere close to zero, this means we have done our job. हमारा जो है काम इस साल का हो गया, right, we have been able to survive very well, है ना. सर्वाइव किया है तो बहुत बेहतर कहानी हमने कर दी है,
राइट। लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ है तो भाई साल अच्छा नहीं रहा है ना कहीं प्रॉब्लम है। वी विल हैव टू फिगर आउट सम काइंड ऑफ पॉलिसी, वी विल हैव टू, गवर्नमेंट विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव टू overcome this situation that we don't end up with too much of negative here. ठीक है।